Good morning and Jai Hind. I, Senior Under Officer Avinash Kadam, cadet of 6th Maharashtra Battalion, NCC Army Wing, and a student of TY Mathematics, BK Birla College, Autonomous Kalyan. Welcome all the dignitaries, Director Dr. Naresh Chandra, Commanding Officer 6th Maharashtra Battalion, Colonel Manish Avasthi, Administrative Officer 6th Maharashtra Battalion, Colonel C.C. De Silva, Principal Dr. Avinash Patil, Dr. Sonal Tawde, in charge and associate of professor, Department of Environmental Sciences, BK Birla College, to the webinar on Say No to Plastic to motivate our cadets to make less or no use of plastic. Now, I request Lieutenant Prakash Sansari sir to inaugurate the webinar. Thank you, Avinash. On behalf of BK Birla College Kalyan, I take this opportunity to congratulate all the cadets for attending this webinar. I thanks to our director sir and principal sir for giving this up, making this platform Microsoft Team available for our cadets. My special appreciation and thanks to Dr. Sonal Taude madam, in charge and assistant professor, Department of Environment Science, BK Birla College, Kalyan. We welcome you, ma'am. I also thanks our commanding officer, Colonel Manish Avesti sir, and administrative officer, Colonel De Silva sir, for giving this opportunity to conduct this webinar, say no to plastic. I'm sure that every cadet of BK Birla College will get benefits of this webinar, and I'm 100% sure that this webinar will definitely gives us a new uh, dimension or a new vision to view how we can use plastics in a better way, in other way how we can reduce and say directly no to the plastic. I'm sure that this webinar will definitely helps to each and everyone. So thank you so much. Now I request our cadet Suraj Vishwakarma to give the brief introduction to our chief guest, Dr. Sonal Taude, madam. Over to Suraj Vishwakarma. Jai Hind, all of you. I am Sergeant Suraj Rameshandra Vishwakarma, and I will give Today I will give a short introduction about ma'am. BSc in Chemistry from Mumbai University with first rank. She has a vast experience of 19 years in teaching field. She is in charge for Department of Environmental Science at BK Birla College. She has won Best Oral Presentation Award at National Conference on Interdisciplinary Approaches in Environmental Science, which is held at MS University of Baroda. She also published 17 research papers in national and international journals. She also presented 21 papers and poster presentation in national and international conferences, and many more things she has done in his life. Thank you, ma'am. And over to Avinash, sir. Thank you, Suraj. Now I request ma'am to start the presentation. Over to you, ma'am. गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. नमस्कार सगळ्यांना. नमस्ते सब लोग. ये मेरा प्रिविलेज है कि संसारी सर ने मुझे यहाँ पर आपके साथ बात करने का एक मौका दिया है, तो मैं खुशनसीब हूँ. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग विच ऑल ऑफ अस नो. Just let me know if my PPT is visible. Yes, ma'am. Yeah, okay, thank you so much. So it's a nice thing to see all of you on this pleasant morning of Gudi Padwa. So सर्वांना गुढी पाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर या दिवशी मी तुम्हाला काहीतरी खूप महत्त्वाचं सांगणार आहे. I'm going to tell you very important thing, that is say no to plastic, which I'm sure all of us are definitely aware of.
So I hope you can see the next slide. Yes, just let me know that, then I will continue. Yes. Yes, ma'am. Yeah, okay. So this is our surrounding. If you see, we love beautiful beaches, serene beaches. We love the mountains, and at the same time, under the sea, the world is beautiful with different fishes and different corals, different colorful organisms all over on the surface of the earth as well as below the surface of the earth. But what have we done? हमने क्या किया है इस अर्थ का? जो हम पानी के ऊपर पानी के नीचे जो इतना सुंदर है उसको हमने ऐसा लाके छोड़ दिया है जहां पर हमें सिर्फ कचरा दिखता है या प्लास्टिक पड़ा हुआ दिखता है और जो जीव जंतु समुद्र के नीचे हैं उन लोगों का ये हाल हो रहा है because of human intervention. And the current pandemic situation has also increased the amount of PPEs what have been used continuously for the last 1 year. So ये सब का एक मुख्य कारण है प्लास्टिक जो बहुत मात्रा में पाया जाता है on a very large scale on and off the water. So if you see what all kind of because ultimately all the plastic goes to the sea via our rivers or lakes or ultimately it is reaching the sea. So you see plastics in different forms like you see styrofoam or thermocol जो हम बोलते हैं. Then there are certain straws which are lying everywhere, plastic bags, plastic shoes, plastic material, cans, etc. जो खिलौने यूज नहीं होते हैं and of course the balloons जो हम लोग balloons छोड़ते हैं as a mark of celebrations. All these ultimately are the different types of plastics which are seen on and off the sea coast. हमने ये नजारा काफी बार हमारे आजू बाजू में देखा होगा कि प्लास्टिक ऐसे ही उड़ रहे हैं, अटक रहे हैं नदी नालों में, कूचों में, they are just clogging the drains. तो ये सीन हो गया है और जो हमने फर्स्ट स्लाइड में सीन देखा था ये एकदम विपरीत सीन है जो हमें आपको किसी को भी पसंद नहीं है. तो ये प्लास्टिक होता क्या है? तो ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर प्लास्टिक 3 चीजों से बनाया जाता है. एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक कोयले से और एक सेल्यूलोज, जिसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल हम लोग उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल मतलब वो एक बार यूज हो जाएंगे तो ये जो मटेरियल्स है ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे. दो दे आर नेचुरल सोर्सेस बोथ पेट्रोलियम एंड कोल. तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो होते हैं जो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये रिन्यूएबल सोर्स होते हैं. जबकि पेट्रोलियम और कोल प्रोडक्ट नॉन रिन्यूएबल होते हैं. तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ये ज्यादातर अर्थ के ऊपर ऐसे ही दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे प्लास्टिक से. प्लास्टिक का एक और ओरिजिन होता है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज मतलब प्लांट मटेरियल का ओरिजिन से बन सकते हैं प्लास्टिक, तो उससे भी बनते हैं. जबकि सबसे अच्छे और बेहतर क्वालिटी के जो प्लास्टिक होते हैं ये सेल्यूलोज प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं, जिसको हम पेड़ों को कई बार लगा सकते हैं, साल दर साल लगा के हम उनकी जो मात्रा है बढ़ा सकते हैं. सो दे आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, लेकिन ये रिन्यूएबल है. तो यही फर्क है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स में. यही नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो हम यूज करते हैं, तो प्लास्टिक्स का आखिर क्या होता है? तो ये जो मैन्युफैक्चर हुआ है या तो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से या कई कोल से या पेट्रोलियम से, उसके बनाने के वक्त काफी सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट और वेस्ट बनते हैं. ये जो टॉक्सिक होते हैं मतलब जो हानि पहुंचाते हैं, बाई प्रोडक्ट मतलब जो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं सब्सटेंसेस, उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. और इसके साथ साथ ये वेस्ट भी जनरेट करते हैं. तो ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक होते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए लेकिन बतौर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ये बहुत टॉक्सिक होते हैं. तो जब ये प्लास्टिक बन जाते हैं तो उसके यूज के पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम होता है जहां से बनते हैं और जहां पर पहुंचाए जाते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी काफी सारा प्लास्टिक वेस्टेज पाया गया है.
यूज के बाद मतलब जिस तरह से हम उसको उपयोग करेंगे प्लास्टिक का, तो उसके बाद वो उपयोग के बाद उसमें से कई सारे केमिकल्स लीच हो सकते हैं। लीच हो सकते हैं माने उसमें से अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर तापमान बढ़ा बाहर का, या प्रेशर में कमी आ जाए, या कोई केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाए, तो ये जो केमिकल्स है ये लीच हो सकते हैं। जब ये केमिकल्स, ये बिकॉज ये केमिकल से बनाया जाता है, जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन जिसे बोला जाता है। तो ये लीच होके हमारे फूड चेन में निकल आते हैं। फूड चेन में मतलब अगर ये हमारे पानी में आए तो कहीं से कहीं पहुंचकर ह्यूमन बींग्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर एनिमल्स तक पहुंच सकते हैं। तो बड़े एनिमल्स तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब छोटे एनिमल अगर हम लोग देखें कि ईगल हुआ, स्नेक हुआ, ये छोटे एनिमल्स है, लेकिन अगर हम बड़े एनिमल्स टाइगर्स की, लायंस की बात करें तो उन तक भी ये केमिकल्स पहुंच सकते हैं आफ्टर लीचिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। इसके बाद में जब प्लास्टिक का यूज हो जाए तो हम उसे कहते हैं एंड ऑफ लाइफ। तो एंड ऑफ लाइफ के बाद में हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो जब हम डिस्पोज करते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से डिस्पोज करते हैं। तो एक तो होता है हम या तो रिसाइकलिंग में डाल दें, जो हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं, या तो लैंडफिल में डाल दे। लैंडफिल वो होता है जहां पर कचरे को भीग बना के जमा करके उसको प्रोसेस किया जाता है, वहां पर चला जाता है। या तो ये प्लास्टिक को जलाया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन। तो ऐसे ये अल्टीमेटली प्लास्टिक के डिस्पोजल मेथड पाए गए हैं, या हम जो ह्यूमन बींग्स जिन चीजों को फॉलो करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है, ये जो प्रोडक्शन और डिस्पोजल की वजह से हम देखेंगे कि कितना प्लास्टिक पूरी दुनिया में 100 मिलियन टन पर ईयर। 1 टन होता है 1000 किलो, 1 मिलियन होता है 10⁶। तो 100 into 10⁶, which makes to 10⁸ किलो एक साल में प्लास्टिक बनाया जाता है। और ये जो प्लास्टिक बन रहा है, इसका एनुअल इंक्रीज बढ़ता जा रहा है 9% से। मतलब हर साल इसका 9% बढ़ोतरी होता है प्लास्टिक के प्रोडक्शन में। वही प्लास्टिक का जो वेस्ट बन जाता है वो होता है 25 मिलियन टन पर ईयर। तो इसमें से आप दे सकते हो 1/4 वेस्ट में चला जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर साल जो बढ़ रहा है तो कितना प्लास्टिक हमारी दुनिया में आ रहा है इन बतौर वेस्ट के। तो हम देखेंगे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक स्टेट का एक बड़ा सा हेडेक हो जाता है उन लोगों को, बिकॉज ये जो प्लास्टिक है ये काफी सारा वॉल्यूम कंज्यूम करता है। वॉल्यूम कंज्यूम करने की वजह से वो काफी जगह लेता है, और जगह लेने की वजह से बाकी जो वेस्ट है वो जगह नहीं पाता है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो डंप साइट होते हैं या जो लैंडफिल जिसे हम कहते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, और पॉपुलेशन की बढ़ोतरी से और ये सॉलिड वेस्ट का जो बोझ है हमारी सरकार पर या कोई भी सरकार पर हमेशा बढ़ता जाता है। एंड एक स्टेटिस्टिकल वैल्यू देके उससे पता किया गया है कि 11.8% बाय वेट ये जो प्लास्टिक है ये हमारी दुनिया में बढ़ रहा है। तो अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो हम बोलेंगे कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। काफी सारे कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लास्टिक की बढ़ोतरी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इफ यू सी दिस फर्स्ट पिक्चर जिसका एक सोर्स मैंने दिया हुआ है, तो चाइना एक ऐसा देश है जो 8.8 मिलियन टन प्लास्टिक दे रहा था 2010 में। अभी तो ये मात्रा और भी बढ़ गई रहेगी। और इसमें एक सिंबल दिया है जो प्लास्टिक मरीन डेब्रीज, माने जो प्लास्टिक आखिर पर समुद्र में पहुंचते हैं, ये उसका नंबर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मोर एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इस वजह से प्लास्टिक का यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और वही हमारे समंदर में, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है वो समंदर की तरफ अपना रुख बढ़ाता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो वी हैव सीन कि हमारे भारत में भी काफी सारा प्लास्टिक अलग अलग क्षेत्रों से आता है, और हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज पाया जा रहा है। तो ये प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं?
देयर आर वेरियस वेज हम प्लास्टिक का पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम एक बतौर नागरिक के हैसियत से या फिर हम कहें कि हम एक स्टूडेंट के हैसियत से हमारे हाथ में देश का भविष्य है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये प्लास्टिक का पोल्यूशन घटाने के लिए या कम करने के लिए। तो दे आर कॉल्ड एज आर्स, रेफ्यूज, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, काफी सारे आर्स को डिक्शनरी में लाया गया है जो कि वेस्ट और प्लास्टिक को कम किया जा सके। तो एक तो है रेफ्यूज। रेफ्यूज माने मना करो, कि हम प्लास्टिक यूज ही नहीं करेंगे। जब तक ये हमारे अंदर से नहीं आएगा कि मैं प्लास्टिक यूज नहीं करूंगी, तब तक बाजू वाला या सामने वाला या हमारे घर वाले क्यों यूज करेंगे, क्यों हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले है मैं, अगर मैं नहीं यूज करूंगी तो कोई नहीं यूज करेगा। ये अगर हम भावना लेके चले तो ये काफी हद तक हमको आगे बढ़ा सकती है कि प्लास्टिक का पोल्यूशन हम कम करें। इसके आगे भी मैं आपको यूजेस बताऊंगी। दूसरी बात है रिड्यूस। तो चूज प्रोडक्ट विद मिनिमम प्लास्टिक पैकेजिंग। तो जब भी हम प्लास्टिक पैकेजिंग वाले मतलब बाजार में जाते हैं, देखते हैं, तो प्लास्टिक पैकेजिंग वाले मटेरियल्स होंगे तो उसे यूज करना हम बंद कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो इससे जो बनाने वाले हैं उन लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अगर ये लोग यूज ही नहीं करने वाले हैं तो हम बना के हमारा फायदा नहीं होगा। तो रिड्यूस, एक चीज है रिफ्यूज करो, दूसरी चीज है रिड्यूस करो, तीसरी चीज है रीयूज करो, कि हम एक प्लास्टिक बैग लेके आए तो जितनी बार हो सके हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं रीयूज, ताकि हमें उसका जो उपभोग है वो प्लास्टिक का वो सबसे ज्यादा मात्रा में हो सके। और सबसे जो आखिर में हम कर सकते हैं वो है रिसाइकल, मतलब उसको पुनः साइकिल में डालने का और उसको एक अलग प्रोडक्ट में हो सके तो यूज करने का। तो दो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। सस्टेनेबल वो होता है जो कि हमको ना कि आज के दौर में लेकिन आने वाले कई पीढ़ियों तक उसका फायदा हो सके। रिसाइकलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, लेकिन दैट इज द ओनली ऑप्शन। यही हमको देखने पर मिल रहा है अगर हम अपने प्लास्टिक का यूज कम ना करें। तो ऐसे ही काफी सारे आर जो मैंने कहा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी। रिकवरी एक मेथड है जिससे हम प्लास्टिक को निकाल सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर है रीपर्पस, माने उसका जो प्लास्टिक का जो यूज है उसी को हम और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, उसको कहते हैं रीपर्पस। तो ये सारे मेथड्स हैं कि हम आप सामान्य नागरिक हम प्लास्टिक का यूज को कैसे कम करना है। तो हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बनाने के लिए 4,30,000 गैलन ऑफ ऑयल यूज किया जाता है 100 मिलियन प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए। और 4 से 5 ट्रिलियन, ट्रिलियन 10⁻12 होता है, जहाँ पे मिलियन इज 10⁻6, ट्रिलियन इज 10⁻12। तो 4 to 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड एनुअली। तो ये हमारे कॉमन नज़ारे हमने हमेशा देखे हुए हैं, जो हम यूज करते हैं और दूसरों को यूज करते हुए देखा है। तो ओनली ये जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं इसमें से सिर्फ 1 to 2% आर रिसाइकल्ड। बाकी सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, जो कि हमारे सॉइल को, हमारे पानी को, मिट्टी को, सब चीज को पोल्यूट कर रहे हैं। और ना ही ह्यूमन बींग्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे बैग यूज कर सकते हैं जो हम घर में बनाएं या फिर हम बाजार से खरीदें, लेकिन हम उसको कई बार यूज कर सकते हैं। जहाँ की हम प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक होता है जो हम एक बार या 2 बार यूज कर सकते हैं, इसको हम साल दर साल हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बैग हमने यूज करना है। तो अगर एक जन ने ऐसे विचार किया कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज करूंगी या नहीं करूंगा और मैं उसके अल्टरनेट मेथड यूज करूंगा, तो एक लाइफ टाइम में, मेरी पूरी जिंदगी में मैं 176 बैग आई कैन सेव इन अ एंटायर लाइफ टाइम। और अगर 5 में से अगर एक बंदे ने भी ये सोच लिया कि मैं प्लास्टिक बैग नहीं यूज करूंगा, तो इतने सारे बैग हम पूरी लाइफ टाइम में सारे ये जो 1 out of 5 पीपल से बचा सकते हैं। और ये सारे माइंड यू विल नॉट रीच आवर ओशंस और सीज। तो हमने क्या करना है, ये जो प्लास्टिक हमने ऑलरेडी
बना दिया है तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो मैंने आपको रिसाइकल का मीनिंग बताया था कि हम उसको पुनः किसी और चीज में कन्वर्ट करें और उसको यूज करें। तो अगर आप ये देख सकते हो, ये प्लास्टिक के बजाय ये है स्टील के स्ट्रॉज। बहुत सारे ओशंस में स्ट्रॉज पाए गए हैं जो कि डीप ओशंस में पहुंचते हैं। तो उसके बजाय अगर हम ये रीयूजेबल स्ट्रॉज यूज करें जो कि स्टील के बनाए हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो सेफ है ही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सेफ है। तो आप देख सकते हैं कि जूस वगैरह पीने के लिए आजकल स्टील के स्ट्रॉज यूज करने का एक माहौल चला है। इसके अलावा जो प्लास्टिक बॉटल्स हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसे हम कुछ तो पेंटिंग करके या गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और हमारा परिसर सुंदर बना सकते हैं। बिकॉज ये तो खराब होने वाले हैं नहीं, तो हमको सीमेंट कंक्रीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं। ये हमारे रिसाइक्लेबल एंड रीयूजेबल मटेरियल्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं दूध वाले या ऐसे लोग ये मटेरियल ले सकते हैं। हम बच्चे हमारे आजू बाजू के बच्चों को हम और आर्टिस्टिक बना सकते हैं उनको ऐसे सब प्रोजेक्ट्स देकर। और ये सब मटेरियल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम मॉल्स वगैरह में टैग्स देखते हैं, ऑल दीज आर मेड ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जो आपने शायद सुने होंगे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बट दीज आर सम ऑफ द न्यू मेथड्स। जैसे अगर ये आप रोड देखें तो बेंगलोर में देयर इज अ रोड विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो जितना सारा वेस्ट है उसको जमा करके उसको एसफाल्ट के साथ मिक्स करके प्लास्टिक के रोड बनाए गए हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा बिकॉज एनीवेज हमारे रोड में बहुत प्रॉब्लम होती है और प्लास्टिक में एक ऐसा द्रव होता है जो कि एसफाल्ट को पकड़ के रख सके और उसको स्टर्डी बना सके या स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वी कैन मेक रोड। दिस इज काइंड ऑफ फर्नीचर। अगर आप देखेंगे ये महिला एक चेयर पे बैठी हैं जो कि प्लास्टिक बॉटल से बनाई गई है। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जो यूज हो कि फ्यूचर फर्नीचर जहाँ पे वुड यूज करना है उसके बजाय हम प्लास्टिक के चेयर्स बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये काफी साल तक हम इसका इस्तेमाल कर सके। ये एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पे प्लास्टिक के बॉटल्स की वॉल बनाई गई है सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स करके। तो इसमें ईंटें भी कम लग रही हैं, ईंटों के बजाय आप प्लास्टिक के बॉटल्स देख सकते हैं। एंड वॉल जो बनते हैं, घर जो बनते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ प्लास्टिक से है और ये सीमेंट कंक्रीट बीच में डाला गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है और पानी से भीगते भी नहीं है। तो इतने सारे अपने ये फायदे होते हैं, लीकेज वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसे गार्डन्स बना सकते हैं छोटी छोटी जगह पे। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वुड के या फिर प्लास्टिक के जो बेंचेस वगैरह रहते हैं उसके बजाय जितने सारे बॉटल्स है वो सारे कलेक्ट करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि वो दिखने के लिए भी सुंदर हो और यूज करने के लिए भी बेहतरीन हो। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगी कि हम ये प्लास्टिक को कम कैसे करें। तो सबसे पहले है हम अपना ओन शॉपिंग बैग ले जाएं। हम अगर नहीं जाते हैं तो हमारे घर में जितने सदस्य हैं वी हैव टू टेल देम कि यू हैव टू यूज योर ओन शॉपिंग बैग, कैरी इट फ्रॉम होम। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर प्लास्टिक बैग बैन फ्रॉम ग्रोसरी शॉप एक्सेट्रा। और अगर आपको कोई ग्रोसरी शॉप दिखती है तो आप उसको मना कर सकते हैं। दूसरी बात है पानी की बोतल। हम अपने घर से अपनी ओन रीयूजेबल वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। ये तो खैर स्टील या थर्मस है, लेकिन कई सारे वुड के भी वुड के भी वाटर बॉटल्स मिलते हैं जहाँ पे वुड के या मिट्टी के बनाए हुए बॉटल्स भी हम कैरी कर सकते हैं। फिर हम अपना चाय का कप जो हम हमेशा प्लास्टिक में पीते हैं वो हमें खुद लेके जहाँ पर भी हमारे काम की जगह हो या जहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं और जहाँ पे हमको चाय वगैरह या जूस या जो भी चीज पीने की आदत है वो ऐसे हम कप खुद कैरी कर सकते हैं। सिमिलरली जो टिफिन हम ले आते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो इसको हम रीयूजेबल, जैसे हमारे सदियों से या पुराने जमानों से हम लोग स्टील का डब्बा यूज करते आए हैं, तो उसी को हमें प्रमोट करना है। उसके अलावा कटलरी वगैरह की बात तो मैंने कर दी है, स्ट्रॉ की, तो ये सारी चीजें स्टील की यूज किया करो।
और प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग डेफिनेटली मना करना ही है। एंड जो हम खाना खाने जाते हैं या कहीं पर थर्मोकॉल की प्लेट्स में खाते हैं, प्लास्टिक के प्लेट्स में खाते हैं, उसे मना करके कहना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए या बोलना चाहिए कि हमें प्लास्टिक में नहीं यूज करना है। और हमें घर में काफी आदत होती है कि जो बच जाता है खाना फ्रिज में रखना है, हम प्लास्टिक के बर्तनों में रखें, तो उससे बजाय हम उसको ग्लास जार में स्टोर करें। वही हमारे घर में काफी सारे जो हम कटधान्य हो या पल्सेस हो, जो वी यूज इट, वी हैव टू स्टोर इट इन ग्लास इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। एंड सबसे महत्व की बात है कि हम ये सारे टिप्स अपने आजू बाजू के परिसर के लोगों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ ये सब सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, ताकि जो अवेयरनेस है प्लास्टिक को कम करने का, ये बढ़ता जाए और हमारा जो प्लैनेट है वो एक सुखी प्लैनेट बने। थैंक यू। So with that, I will end my presentation. I hope it didn't take you too long. Yes, sir. Thank you so much. Yes, ma'am, it's wonderful. Yeah, Avinash, go ahead, Avinash. Yes, thank you so much, ma'am. Now, I would like to ask if any cadet has any questions, so they can come forward to ask questions. Raise hand, we will then ask you. Yes, किसी को कोई प्रश्न है? Yes, Yes, there is Sanek, somebody. sorry. Yes. Ma'am, which type of plastic we can recycle? The plastic which is having more than 50 microns to 80 micron size, we can recycle. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, welcome. Any other questions, students? आई एम श्योर हमने ये सब काफी बार सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी तरफ से हम अगर ये करेंगे तो कई बार हमें हास्यास्पद, पीपल लाफ एट यू कि क्या खुद के पुराने कपड़ों के बैग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के जो जमाने में हम जो करें वो फैशन, तो ये अगर हम करके चलेंगे तो अगर हम जो पुराने कपड़ों में से बैग्स बनाए गए हैं उसको अगर यूज करना चालू करेंगे तो एक फैशन स्टेटमेंट भी बन सकता है। एंड दिस हैज प्रूव्ड इन मेनी केसेस एक फैशन स्टेटमेंट बतौर लोगों ने एक एंटरप्रेन्योर स्कीम्स चालू किए गए हैं और उनके जो बैग्स वगैरह हैं, ब्यूटीफुल बैग्स दे मेक विथ से पैठनी बॉर्डर्स और एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर्स, और कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है इस मामलों में, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, और पूरे वर्ल्ड वाइड उनके जो मटेरियल्स है वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें जानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं ये क्षेत्र में। Yes, any other questions, students? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, is it Right. possible to recycle the plastic at home? Recycle plastic at home, yes, it is possible. Like I told you, you can make different artifacts. हम छोटे आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं और वो आर्टिफैक्ट्स हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली डू दैट, लेकिन उसके लिए हमें वो ज़ील होना चाहिए, अंदर से एक आवाज़ होनी चाहिए कि नहीं हम ये करेंगे, ये हम डेफिनेटली करेंगे। अगर आप सोचो तो दुनिया बहुत बड़ी है और नहीं सोचो तो घर के अंदर भी सीमित नहीं है। Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah, Yes, student. even I think if any student have any cadet have any question, if you can ask now, then fine. If not, then you can always write to me, or I will forward it to madam, or we can share the madam email address. You can always ask Sure, madam on sure. an email. Anytime, most welcome. Yeah.
Yeah, Avinash, please go ahead. Thank you so much, ma'am. Now I request Junior Under Officer Saurabh Garge to give vote of thanks. Thank you, Avinash. I, Junior Under Officer Saurabh Dattatreya Gadge of 6th Maharashtra Battalion NCC Army Boys, a student of SYBSc Physics Mathematics, on behalf of NCC Army Boys, BK Birla College Kalyan, would like to give heartily welcome vote of thanks to Director Dr. Naresh Chandra Sir, BK Birla College Kalyan, Commanding Officer 6th Maharashtra Battalion, Colonel Manish Avasthi, Administration Officer Colonel C.C.D. Silva, Principal Dr. Avinash Patil, and our special guest and speaker Dr. Sonal Taude, and also thank our Lieutenant Prakash Ansari sir for such a good webinar which will surely motivate our cadets in conserving nature by reducing plastic waste. And at the end, I would like to wish a happy Gudi Padwa to everyone. Thank you. Thank you, Saurabh. Now I would like to ask all the cadets